अच्छा देखिए बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वी आर डूइंग पेपर, so we are doing this paper February March 2026, paper 1 variant 2. Basically February March में there is only one variant. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन MCL. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हाईलाइट द की फैक्ट्स. लाइक हियर, MCL is a private limited company which makes toys. The business wants to contribute to the sustainable development, so uses recycled plastics to make the toys. The business uses retailers as its channel of distribution. MCL's finance director knows that the business has a cash flow problem. So you can see they have given you some facts. उसको आपने अपने पास highlight कर लेना. Now the first thing is define the private limited company. That's very easy question. For 2 marks, you have to write the answer here. So I'm writing here the answer. ओके जी. अ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है which is not listed at the stock exchange. A private limited company is a business owned by shareholders whose liability is limited. That's very important thing. कि क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दोनों में लायबिलिटी तो हमारे पास लिमिटेड है टू द अमाउंट दे इन्वेस्ट, and their shares cannot be sold to the जनरल पब्लिक. ठीक है, जितनी इन्वेस्टमेंट है, liability is limited to that amount only. After that, the shares cannot be sold to the public. So just focus on this. कि this is a 2 marker question, so you have given the 2 facts. पहला फैक्ट है कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी है, और दूसरा फैक्ट है कि शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को सेल नहीं हो सकते. इसके बाद ये जो दे रहा है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर इसमें बहुत सारे लोगों ने फंसना है और गलत आंसर लिखना है. ठीक है. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development is development that meets present needs of the business, yeah, whatever, without damaging the ability of without damaging the ability of future generations to meet their own needs. ठीक है. आप बेसिकली इस तरह से यूज करेंगे अपनी रिसोर्सेस को कि जिससे आपके बाद आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए चीजें खत्म ना हो जाए. जो फॉर एग्जांपल वी हैव फॉसिल फ्यूल्स, दीज नॉन रिन्यूएबल थिंग्स व्हिच आर पेट्रोल एंड एनर्जी सोर्सेज एंड ऑल, तो उनको इस तरह से यूज करना है कि
they should remain available for the upcoming generations. Okay. Now सी पार्ट, सी पार्ट की हमारे पास क्या होती है? इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन and you are supposed to give 1 point, like there one advantage and one disadvantage has been asked in this question. तो एक knowledge और एक application you have to give, right? Outline one advantage and one disadvantage to MCL of using primary market research. Now primary market research का क्या benefits होना है? Okay. तो प्राइमरी रिसर्च प्रोवाइड्स अप टू डेट एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती है और अब रेलेवेंट मिलती है. प्रोवाइड्स अप टू डेट एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये तो हो गई बात नॉलेज की. इससे एमसीएल को क्या फायदा होगा? दिस हेल्प्स एमसीएल डिजाइन टॉयज that match customer preference accordingly. Since they make the toys, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब टॉयज वो प्रोड्यूस करेंगे तो दोस टॉयज विल बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंसेस. वो रिसर्च से ये चीज पता कर लेंगे, राइट? नाउ डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी रिसर्च? Primary research is time consuming and expensive. Obviously, primary research is expensive and time consuming. पैसा और टाइम दोनों लगता है. This may increase MCL's cost and delay decision making. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड. अब देखते हैं डी पार्ट. डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपको एनालिसिस देना होता है. एंड दिस इज द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स आर डन. क्यों? क्योंकि एनालिसिस जो हमें देना है, दैट एनालिसिस शुड बी विद द एप्लीकेशन. So paper has, question has the fact कि this business has cash flow problems. तो अब वही सवाल कर रहे हैं वो. They are asking you 2 ways that could overcome, that could help the MCL to overcome its cash flow problem. So, okay, let's हम पहला लिख देते हैं. Very basic answer I am giving here. Improve cash inflows that are offer discounts to customers. Okay. For early payment. अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. The discounts to pay earlier
would encourage the customers or the retailers to pay faster. जल्दी पे करेंगे वो लोग. अब इसका एनालिसिस. Increasing cash coming into the business which will lead to improved. आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी क्योंकि बिजनेस में ज्यादा कैश अवेलेबल होगा. राइट. नाउ second way to better off your cash inflow would be, oh sorry, delay cash outflow. Delayed cash outflow by negotiating with the suppliers for late payment. ठीक है. आप अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करेंगे कि भाई हम जो पैसे दे रहे हैं वो आपको हम थोड़ा सा बाद में देंगे. राइट. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हम. MCL can take more time to pay its suppliers, keeping cash within the business. ज्यादा टाइम तक कैश जो है वो बिजनेस के पास रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. फॉर लॉन्गर एंड ईजिंग. इससे होगा क्या. शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेजेस को आप कवर कर लोगे. ठीक है बेटा. क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई पार्ट, जिसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हैं. इसके फॉर्मेट में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम रहती है. राइट. सो हाउ टू गिव द आंसर, a balanced answer. Do you think retailers are the best channel of distribution for the manufacturing business to use? Remember one thing, that e-part does not require any sort of application. कोई application नहीं है. Right? No application required. Your answer should not have any application. Just the knowledge analysis and evaluation. Now let's see. Retailers can be effective. Retailers can be effective because they already have shops and customer bases. So the manufacturing businesses, let's make it. So a manufacturing business can reach many customers
quickly without setting up its own retail outlets. ठीक है, दिस इज वन थिंग. इसका एनालिसिस क्या होगा? दिस रिड्यूसेस business cost and increase sales potential. ठीक है. Now counter. However, using retailers reduces manufacturers' control over pricing and how the product is displayed. क्योंकि जो रिटेलर होगा वो अपनी मर्जी से करेगा ये काम, राइट? Retailers take their profit to reducing manufacturers' own profit. ठीक है. Argument and then counter argument. This is now giving you 4 marks. जो पहला argument दिया with analysis, it is giving me 2 marks. After, however, I am giving the another analysis, another point that is giving me the counter argument, that is giving me the other 2 marks. See, and then now the conclusion or the judgment. Retailers are suitable. Retailers are suitable for expanding market reach, but may not be the best option for a manufacturer if it wants higher profit margins and deeper control. ठीक है, अगर मैं उसको कंट्रोल और वो चाहिए, so it mainly depends on business objectives. ठीक है बेटा, this is how you write the balanced 6 marker question. First of all, I give the one argument in the favor, then I give the counter argument in against, and then I give the conclusion. Simple. Don't make it difficult one for you and for the examiner. बिल्कुल simple words में answer दो, simple तरीके से answer दो, so that's very easy, right? Now tell me, is there any question? ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. See, A part, B part, C part, then D part, and E part. Any question in that, beta? Any confusion? चले, let's see the question number 2. जल्दी से question 2 को भी देख लेते हैं.
Our target is to do two questions today. Define the public sector. Public sector business. Acha, remember this is public sector business, beta. This is not a public limited company, right? तो पब्लिक सेक्टर बिजनेस क्या होता है? A public sector business is owned and controlled by the government and it aims to provide services to the society instead of focusing only on profit making. बेटा यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, देखो एक बात बहुत क्लियरली याद रखना, यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो म्यूनिसिपल बिजनेसेस जैसे केएमसी है, केटी है या गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका रेफरेंस दे देते हैं। देखो उनका रेफरेंस नहीं देना। पब्लिक सेक्टर बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज एम टुवर्ड अर्निंग द प्रॉफिट। तो बिजनेस सिर्फ वैसे प्रॉफिट के लिए होता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो लोगों को फ्री में चीजें दे रही है, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। यस, इनका बेसिक मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बट दे वर्क फॉर द प्रॉफिट। तो इसमें आप कह सकते हो जैसे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल which is working for the profit, but it is owned and controlled by Pakistan government. Okay. Then identify two benefits to a business of having a well motivated workforce. या अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपल दे रहा है तो जस्ट आइडेंटिफाई, जस्ट नाम लिखना है, दैट्स इट। तो टू बेनिफिट्स क्या होंगे मोटिवेटेड वर्कफोर्स के? सबसे पहले तो हायर प्रोडक्टिविटी, और दूसरा आप कह सकते हो कि जी क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं तो वो काम छोड़ के भी नहीं जाएंगे, तो लो लेबर टर्नओवर। सिंपल। और कुछ इसमें ज्यादा लंबे चौड़े आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? आइडेंटिफाई 4 stages in the recruitment process. Again, no need to define them, just give the name. First of all, job analysis and job description. Second stage, advertising the vacancy. Third stage may be shortlisting the applicants. जिन जिन लोगों ने आपके पास अप्लाई किया हुआ है आप उनको शॉर्टलिस्ट कर लें। एंड फाइनली the fourth one is interviewing and selecting the candidate. Right? अच्छा सर, ये हमें सीक्वेंस से बताना जरूरी है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं, वैसे भी लिख सकते हो। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो उधर। ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई 4 stages। अगर वो आपसे कहता है ना कि डिफाइन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, if they ask you कि भी define the process, तो डेफिनेटली इफ यू आर एक्सप्लेनिंग प्रोसेस तो फिर आप सीक्वेंस में बताइए। अगर वो आपसे सिर्फ स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, मैंने जो है वो सीक्वेंस में लिखा है, बट यू कैन राइट जंबल अप भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। नाउ डी पार्ट, explain one advantage and one disadvantage to LMB of using on the job training. On the job training क्या होती है? जो काम के दौरान ही लोगों को, एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाता है while being on the job. Now no need to explain on the job training here. It is simple, it is cheaper than the off the job training. Advantage is simple, it is cheaper
then the off the job training. बिल्कुल इजी, कोई हमें इसमें मुश्किल चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है. Now explanation. This reduces, देखो क्या था हमारे पास, ऑन द जॉब ट्रेनिंग reduces the training cost as no external trainers, or venues are needed, so their cost is saved. बिल्कुल सिंपल आंसर. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का? इट्स अगेन वेरी सिंपल. It may disrupt the normal work. It may disrupt the normal work. ठीक है, जो नॉर्मल आपका काम का रूल होगा उसको ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज विल बी busy in getting the trainings and all. Employees learning on the job may make mistakes reducing efficiency and affecting the service quality. अच्छा बेटा, कैन एनीवन टेल मी कि ये जो अभी मैंने आंसर आपको दिया फॉर पार्ट डी, so how much marks the examiner will give in this answer? कोई बता सकता है? 2. 2. Why? बिकॉज इसमें एप्लीकेशन भी है और एनालिसिस भी. Exactly, इसमें एप्लीकेशन नहीं है, तो 2 मार्क्स तो एप्लीकेशन के स्ट्रेट अवे कट गए, राइट? अच्छा, एनालिसिस है इसमें. देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिड्यूसेस द ट्रेनिंग कॉस्ट, उसका हमने बता दिया ना कि कॉस्ट सेव हो रही है, और यहाँ पे देखो मिस्टेक्स की वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है और सर्विस क्वालिटी इफेक्ट हो रही है. एनालिसिस तो है, नॉलेज भी है, एप्लीकेशन नहीं है. इसको जर्नल आंसर दिया मैंने, इसको मैंने ऊपर एलएमबी से कनेक्ट नहीं किया. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाते हो डी पार्ट में, यहाँ पे अगर आप ऊपर डी पार्ट पे देखेंगे तो इसको हमने कनेक्ट किया एमसीएल के साथ, जिसकी वजह से वहां पे हमारे पास एप्लीकेशन बन रही थी. लेकिन यहाँ पे हमने इसको एलएमबी से कनेक्ट नहीं किया, गिवन बिजनेस के साथ कनेक्ट नहीं किया. एंड दिस इज द मिस्टेक. जब हमारे पास पेपर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर्स, उसमें स्टूडेंट्स यही वाली मिस्टेक कर रहे होते हैं. आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ होता है, बट कनेक्ट नहीं किया गया ऊपर वाले केस से. ठीक है, तो डेलिबरेटली मैंने ये आंसर इस तरह से दिया कि आप देखो इसमें एप्लीकेशन मिसिंग है, एप्लीकेशन है ही नहीं. आपने जर्नल आंसर दे दिया, दो आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट, लेकिन वो फुल मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर आपको, वो आपको इस पे 4 ही देगा, क्योंकि एनालिसिस के मार्क्स दे रहा है. और इसमें भी जो पहला पॉइंट है उसका जो एनालिसिस है वो बहुत वीक दिया है मैंने, जबकि दूसरे पॉइंट का एनालिसिस स्ट्रांग है. पहले पॉइंट का एनालिसिस भी बहुत वीक है. तो माइट भी अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होगा तो वो 3 मार्क्स देगा, थोड़ा सा लीनियंट एग्जामिनर होगा तो 4 मार्क्स देगा. 4 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की एप्लीकेशन इन्वॉल्व ही नहीं है.
अब देखिए LMB काम क्या कर रहा है। ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं एप्लीकेशन की तो वी नीड टू गो इन द केस, यहाँ पे वो हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर पीपल एज एट 70 years एंड अबव। ऐसा क्यों हुआ? वाई आई डिडंट गिव द एप्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन? आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट किया तो मैंने की फैक्ट्स को अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। तो जब मैं आंसर लिख रहा था तो मुझे वो की फैक्ट्स याद थे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, जस्ट मैंने थोड़ा सा केस को पढ़ा और आंसर्स लिखना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? एप्लीकेशन मैंने मिस कर दी, राइट? तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि पहली चीज, हमने ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट को सही से पढ़ना है। सेकंड, हमने हाईलाइट कर लेना है। समटाइम इट हैपेंस कि वहां पे इन्विजिलेटर्स हमें कहते हैं कि जी अलाउड नहीं है। ओके, इट्स ओके, डू नॉट आर्ग्यू विद देम। हाइलाइटर वो मना करते हैं, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, दे विल नॉट से अ सिंगल थिंग, बट कर लें, वो जरूरी होता है ये। इससे क्या होगा? एप्लीकेशन मिस नहीं होगी। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर हेल्थ केयर के हवाले से कुछ लिख देता, 500 एडिशनल एम्प्लॉइज हायर किए हैं, ट्रेनिंग की बात हो रही है, 500 एडिशनल एम्प्लॉइज का रेफरेंस दे देता, राइट? तो इन दोनों चीजों से मुझे एप्लीकेशन हो जाती है और एप्लीकेशन के मार्क्स भी मिल जाते हैं, राइट? आई होप बात समझ आई होगी कि आप क्यों मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं डी पार्ट में, राइट? अच्छा जी, मैं पता इसका आपको एप्लीकेशन के साथ भी आंसर देता हूँ, ठीक है? इससे पहले हम ई पार्ट देखते हैं। अच्छा, होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं, पता चलता है जी डी पार्ट में एप्लीकेशन नहीं दी लेकिन ई पार्ट में एप्लीकेशन लिख दी। देयर इज नो नीड ऑफ एप्लीकेशन इन ई पार्ट। और देखो, एग्जामिनर का काम है आपको कंफ्यूज करना। कैसे कंफ्यूज करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। E part is saying, do you think using email is the best method for our business to use to communicate with its employees? जबकि ये जर्नल क्वेश्चन है, जेनेरिक क्वेश्चन है, देयर इज नो एप्लीकेशन इन्वॉल्व। लेकिन अगर मैं ऊपर एक्सट्रैक्ट पे जाऊं तो देखें, एक्सट्रैक्ट में वो क्या कर रहा है? द बिजनेस यूजेस ईमेल एज इट्स मेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। स्टूडेंट देखता है, अच्छा ईमेल की बात हो रही है, तो वो ईमेल को लिखते हुए इस बिजनेस के साथ उसको कनेक्ट कर देता है, which is simply not needed, right? Is that clear? Now let's write E part. Email is obviously, email की knowledge बड़ी easy है. Email is faster and cheaper mode of communication. Simple. पहली बात knowledge दे दी हमने. A business can communicate with many employees quickly. ईमेल के थ्रू आप मल्टीपल एम्प्लॉइज के साथ एट अ टाइम कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स written evidence for the future. ठीक है, रिटन रिकॉर्ड भी है। पॉजिटिव बातें कर दी, चलिए नेगेटिव बात करते हैं। However, emails may be ignored or misunderstood, especially when they contain complex information. मुश्किल चीज उसमें है तो वो मिसअंडरस्टूड हो सकती है।
right? Not all employees may check emails regularly. बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं emails को. Not all employees may check the email रेगुलरली. और बेटा इसमें देखें, ये नहीं लिखिएगा कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा वेग आर्ग्यूमेंट है. मे बी मार्किंग स्कीम में कहीं पे लिखा हुआ भी हो, बट ये बहुत वीक आर्ग्यूमेंट होता है कि आज के दौर में आप ये कहें कि जी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है किसी के पास, इसलिए वो ईमेल चेक नहीं करता. हर एवरी third person is using a smartphone and a smartphone does not work without the email, right? So you cannot write कि उसके पास इंटरनेट नहीं है, right? So please do not like this. Please do not write this. Now, email is a useful communication method for routine communication, but it is not always recommended for the complex messages or important information if shared with the employees. अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब क्योंकि ईमेल की बात की है तो उसके साथ वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर लेटर्स या फिर और किसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिखते हैं, which is also correct. You can write, you can give the reference for the other mode of communication like in this question. मगर ऐसा नहीं हो कि आप जब अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिख रहे हो तो इतना ज्यादा उसके बारे में लिख लें कि आप एक्चुअल क्वेश्चन से डिविएट कर जाएं. 1 or 1.5 line would be more than enough for that. ठीक है? Now coming back to our D part, जिसमें हमें एप्लीकेशन इंक्लूड करनी है. So, but again, anyone wants to give, is anyone there wants to give his or her input कि कहाँ एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन में ऐड कर सकता हूँ. On the job training reduces the training cost as no external trainers when or venues are needed, so their cost is saved. तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कैसे दे सकता हूँ? इसी इसी पॉइंट में एप्लीकेशन ऐड करने का कोई बता सकता है? Sir, can you please show the case study first? Yes, sure. This is the case study. And let me tell you कि जो आपके पास इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन है ना, वो ये निकलेगी यहाँ से. मेनली 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. एक मेरे पास है जी recruitment process for 500 additional employees. Yes, I can get application from healthcare services as well. ठीक है? तो ये आपके पास केस आ गया. मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूँ. This is the question. Now can you tell me के how to add application in this? बहुत सिंपल है. So we can write on the job training reduces the training cost for 500 employees. So no external trainers venues are needed. नहीं नहीं So नहीं नहीं this is it. थोड़ा सा we need to fine tune this. देखो, on the job training reduces the training cost. This is the knowledge point. As no external trainers or venues are needed. ठीक है? तो अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं. और venues are needed.
So LMB can save the transportation cost of sending its additional employees to the training venues. चलो एडिशनल 500 कर दो और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन हो जाएगी. ठीक है, समझ आया क्या किया यहाँ पे? No external venue needed, so definitely you are not supposed to send your 500 employees to their training venues, right? तो उनको भेजने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी. अब ये परफेक्ट आंसर हो गया. इससे पहले इसमें एप्लीकेशन मिसिंग थी, इसलिए 1 मार्क नहीं मिल रहा था. इसमें 3 में से 2 मिल रहे थे. नाउ यू कैन गेट 3 out of 3 फॉर फर्स्ट एडवांटेज पॉइंट. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा कि हाउ टू ऐड द एप्लीकेशन इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर? आंसर आप लोग सही लिख लेते हो, आंसर बिल्कुल सही लिख लेते हो, बट एप्लीकेशन ऐड नहीं करते हो, राइट? अब यहाँ पे नीचे हम कैसे डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं? एम्प्लॉइज लर्निंग ऑन द जॉब may make mistakes, reducing efficiency and affecting the service quality. Since LMB offers health services, so a little mistake can have a huge negative impact on the patient or on the customer, right? तो इसमें हेल्थ की हम बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वो कह रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज, एप्लीकेशन का पॉइंट मिल जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं, छोटी सी गलती भी किसी ने की तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. सो यू कैन नॉट टेक चांस ऑन द हेल्थ केयर. हेल्थ केयर का जब लिखूंगा ऊपर हेल्थ केयर की बात हो रही है, एप्लीकेशन के फुल मार्क्स दे देगा एग्जाम, राइट? Try to read the mindset of examiner. Do not just give the answers. देखो ये वो business studies is the only theory subject. Even मुझे नहीं पता, I have not come across any other subject जो कि theory subject हो और उसमें आप full marks gain कर सकते हो. In this subject you can get full marks. Yes, maybe paper 2 में नहीं आ सकते क्योंकि level marking होती है, but in paper 1 you can get 80 out of 80, right? ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैंने ए पार्ट और बी पार्ट करवा दिया, राइट? के ग्रुप में मैं आपको ये पूरा पेपर शेयर करूंगा जिसमें मेरे पास मैं इसके जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके टुमारो आई विल शेयर द सॉल्व पेपर इंशाल्लाह. मीनवाइल आप लोग खुद भी, ये पेपर्स हैं आपके पास, खुद भी ट्राई करें, इसको चेक करवा लीजिएगा मुझसे. नो इश्यूज इन दैट. ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज.